to the 6th edition of Orange City Literature Festival organized by SGR Knowledge Foundation powered by Raisoni Education. Today we embark on a fascinating journey through the mysteries of Indian astronomy, a field that has captivated thinkers and scientists for millennia. From the ancient scriptures of the Vedas to the groundbreaking works of astronomers like Aryabhat, Varaha, Mihira and Bhaskara, Indian astronomy has been a beacon of scientific advancement, blending mathematics, cosmology and philosophy. Did you know that Indian astronomers calculated the length of a year with remarkable accuracy thousands of years ago? Or that they proposed theory about Earth's rotation and the heliocentric model long before these ideas became widely accepted in the Western world? Stay tuned for more such revelations in this session, Mysteries of Indian Astronomy. Today we have with us Mr. Nilesh Oak, author and the scientific chronologer of ancient epics. May I just introduce our today's privileged guest and speaker. Mr. Nilesh Oak is an author, original researcher, GAIA and TEDx speaker, UAAICT distinguished alumnus, and sought after keynote speaker. He holds a BS and MS in chemical engineering and an executive MBA. He has published 3 revolutionary books: When Did the Mahabharata War Happen?, The Historic Rama, Bhishma Nirmana. His books have been and are being translated into various other languages. He travels extensively around the world, speaking to university and college students and to mainstream audience as well. His work has inspired novels, novelettes, documentaries, and movies. Nilesh helps individuals become aware of the deep wisdom and antiquity of Indian civilization so that truly comprehend, present, or defend the grand narrative of this civilization. Unlike most other Indian researchers, because he builds it through scientific acumen and logical reasoning. Welcome, sir. And to join this discussion, we have a very dynamic Dr. Mrinal Naik. We have Dr. Mrinal Naik as the moderator of this session, a versatile academician and accomplished administrator. She holds a PhD in business management, MBA, a diverse array of expertise in commerce, law, music, and literature. With over 15 years of enriching experience in industry, including banking and leadership roles in prestigious educational institutions. She also excels in project management, HR, and strategic planning. Serving as the project director of the Orange City Literature Festival, guys, we would have not been here because of her. She has played a pivotal role in its inception and growth. As the TEDx Civil Lines licensee and organizer, Mrinal contributes significantly to the dissemination of transformative ideas. So, as the topic itself is so very captivating and we are running out of time, that can make all of us dwell deep into forgetting the time frame, I must appreciate the guest of this session for having accepted and structured the topic into a frame of 40 minutes, inclusive of the audience question hour. So, ladies and gentlemen, presenting today's topic, Mysteries of Indian Astronomy. Over to you. Thank you. Thank you so much for accepting this invitation, sir. Which language you all are comfortable in? Hindi, English or Marathi? English. English. All are comfortable in English? Yes. Okay. So we can make it Hindi English. Okay? Done. So the basic concept that we all would like to understand, and from the beginning that we all should be interested into, is something which we look up, isn't it? So when we talk about time, महाभारत का एक concept जो हमारे सामने हमेशा आता है, मैं समय हूँ, और वो फिर पूरा एस्ट्रोनॉमी वाला चीज वो पूरा घुमाते हुए दिखाता है. Sir, can you just start with the concept? What exactly this astronomy is, like for kids, if they can just understand that. नमस्कार एवरीवन. सुनने में आ रहा है? ओके. सो प्रश्न उनका सो उन्होंने बोला इंग्लिश में बात करेंगे. आई विल से शी विल टॉक हिंदी, आई विल टॉक इंग्लिश. हाउस दैट? इंग्लिश हो जाएगा. My Hindi is not something to be praised about. So Marathi. How many people speak Marathi by the way here?
Okay, so why you just said English? चालेल मला इंग्लिश पण चालेल. English करूया, you know. Anyone here who does not understand Marathi? Okay, ठीक है, तो English करना पड़ेगा, you know. Okay, that's how minority controls. Okay, very interesting. But उनका जो प्रश्न था मैडम जी का कि एस्ट्रोनॉमी हम महाभारत का हम देखते हैं तो आता है कि मैं काल हूँ. अभी चोपड़ा ग्रुप might have done this for some special effect. कहाँ तो शुरू करना है. But actually they are telling the truth. As far as Indian astronomy is concerned, and therefore, listen to me very carefully, all young kids also, everyone. Because it is in Indian astronomy, and I'm saying therefore in the world astronomy, the whole world's astronomy, simple definition is astronomy is time. Period. अभी तो क्या होता है, आपने कहा कि हम ऊपर देखते हैं, ऊपर देखा तो देखते हैं, आजकल तो सबकी नेक्स्ट नीचे रहती है, क्यों बताए ना, स्मार्टफोन, हमने आउटसोर्स कर दिया है स्मार्टफोन से. बट जब हम ऊपर देखते हैं समझ लो अभी आजकल वो घड़ी भी नहीं रहे, जो वॉल के जो क्लॉक्स रहते हैं, वो जो वॉल के जो क्लॉक्स है वो भी एस्ट्रोनॉमी से ही आए हुए हैं कि सन की जो शैडो है वो शैडो सन साइकिल पे कहाँ गिरती है उससे टाइम बताना. So then we automated into a clock. So as far as the Indian civilization, आप कुछ भी उसको नाम दें, भारतीय civilization, हिंदू धर्म, कुछ भी कहें, astronomy is time, and therefore world के लिए astronomy is time. So when you are saying that this is something, then I can say that this is the contribution for a clock that astronomy has given. But when we talk about astronomy, in your discussions, or in the other discussions also, it was like that Indian astronomy is something that has contributed to the world. So, would like to understand from you, what are the things that Indian astronomy has contributed? Like our kids would understand that and they will enjoy it too. Okay. So this is a student for the kids who are kids right now and who used to be kids, basically everyone. मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि एस्ट्रोनॉमी जो अभी साइंस करके हम जिसको कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी वेरी सोफिस्टिकेटेड साइंस है, उसका प्रारंभ कहाँ हुआ? और मुझे पुश करने के लिए इंडिया मत बताना, बिकॉज आई विल आस्क फॉर साक्ष्य, एविडेंस क्या भी पूछूंगा मैं. बट आपने क्या सुना है? आपके टेक्स्ट बुक में क्या है? आपके टेक्स्ट बुक तो है ना, उसमें क्या एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट जब आ जाता है तो क्या बताया जाता है आपको? एनीवन? आप स्कूल में जाते हैं? ओके. ग्रोन अप्स, यू नो, इट्स नॉट अ प्रेशर ऑन द यंग किड्स. आपने क्या सुना है? व्हाट यू हैव हर्ड व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोनॉमी? एस्ट्रोनॉमी एज अ साइंस का प्रारंभ यहाँ हुआ. व्हाट हैव यू हर्ड? हाँ, थोड़ा लाउडली बताइए. ग्रीस. कितना लोगों ने ग्रीस से सुना है? ग्रीस सुना है, शायद रोम सुना होगा. ये आपको पूर्व पक्ष, आपको आपके जो संकल्पना, आपके मन में जो कल्पना क्या है उसका पहले पता चलेगा, तो देन यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमी. नहीं तो नहीं समझेगा. ये तो चल रहा है, हाँ अच्छा ऐसा है क्या, इंडिया में हुआ क्या, होने दो, क्या फर्क पड़ता है. फर्क पड़ा आपको ऐसा समझेगा कि जस्ट नॉट दैट लॉन्ग अगो, आप सिर्फ 500 ईयर्स पहले चले जाइए. 500 ईयर पहले वेस्टर्न यूरोप में तो उनका जो कैलेंडर है ना, जो कैलेंडर ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल जो दिख रहा है आकाश में, जो सीजन दिख रहे हैं, उससे ऑफ कितना दिन से हुआ था पता है आपको? 88 डेज से. 88 डेज मीनिंग 3 months अप्रोक्सीमेटली, मीनिंग पूरा एक उनका एक सीजन, हमारा 1.5 सीजन. ऐसा कैसा हो सकता है? दिस वाज ओनली 500 ईयर्स अगो. ये आपको जब समझ में आएगा तो देन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग इंडियन एस्ट्रोनॉमी. You can see Indian astronomy is so precise. Basically आप पंचांग की मैं बात कर रहा हूँ, उससे भी हम थोड़ा आगे हमें जाना है. But basic पंचांग के लिए क्या लगता है? सबको पंचांग सुना है आपने कैलेंडर करके? उसके लिए क्या लगता है? Actually only 3 things: sun, moon and नक्षत्र. Done. You do not need anything else to have the basic पंचांग जो हमें समय की जो गणना करनी है. वो भी वेस्टर्न यूरोप में 500 इयर्स तक नहीं. अभी तो लास्ट 500 इयर्स दे मेड अ ट्रेमेंडस प्रोग्रेस. उसके बारे में हम बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक इंडियन एस्ट्रोनॉमी बट द वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी.
बट उसके पहले दैट मच डिसइंफॉर्म इट वाज। तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा तो कि वो ग्रीस से आई, ग्रीक वेर क्लूलेस, absolutely clueless as far as understanding this. आपको पता है the smallest measurement that the Greeks could do, which is about 500 BC, 2500 years ago. Anyone knows the smallest measurement they could do? 1/4 quarter. Smallest measurement. Do you know? And not at the 2500 years ago, thousands and thousands of years ago. कितना thousand years हम थोड़ी बात करेंगे. Thousands and thousands of years ago, Indian astronomy में जो precision था, anyone knows what was that precision? 1/4 mean 1 divided by 4. सबको पता आ गया? इंडियन एस्ट्रोनॉमी का जो प्रिसिशन है और उसका भी रीजन है इतना ही एग्जैक्टली क्यों है, वो है 1 divided by 3438. 3438. आपको ये भी सोचना चाहिए रैंडम एक ऐसा वेग नंबर क्यों लाया? इट्स नॉट वेग, बट दैट्स हाउ प्रिसाइज इट इज. सो क्विकली इंडियन एस्ट्रोनॉमी की देन जो आपने प्रश्न पूछा तो कहे तो बेसिकली गिविंग द इंडियन एस्ट्रोनॉमी, द एस्ट्रोनॉमी इटसेल्फ, एस्ट्रोनॉमी एज अ साइंस. बट उसके आगे भी एक बात है, मैं आपको एक बात कह दूं, हम जब कोई एक सिंपल बात सबको एक्सप्लेन करना है तो हम दृष्टांत का उपयोग करते हैं. सबको पता है मेटाफोर, सिमिली, ऐसा हम कहते हैं. दृष्टांत का उपयोग कैसा करते हैं? दृष्टांत ऐसा होना चाहिए कि जो सबको पता हो, नहीं तो फिर दृष्टांत का उपयोग ही नहीं. ओके, मीन्स सिर्फ एक एक्सपर्ट लोगों को पता हो के फायदा नहीं. दृष्टांत की डेफिनेशन ही ऐसी है, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम सदृष्टांत. दृष्टांत ये ऐसी चीज, सच अ थिंग, सच अ टूल, सच अ स्टोरी, सच अ मेटाफोर जो कुछ है कि जिसके कारण सामान्य लोग, लौकिक परीक्षकाणाम एंड द एक्सपर्ट्स, ओके, लौकिक परीक्षकाणाम यस्मिन अर्थे बुद्धि साम्यम, सामान्य लोग भी और एक्सपर्ट भी एक लेवल पे ही आ जाते हैं. ये चीज का उपयोग करने के कारण उसको दृष्टांत कहा जाता है. इसलिए सामान्य आदमी को भी दृष्टांत पता चाहिए. तो मैं आपको एग्जांपल आपको पूछने वाला हूँ, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा सबको. सूर्य बीच में है और सब हमारे ग्रह आसपास घूम रहे हैं, ये हमें किसने बताया? हमें भी नहीं, आर्यभट्ट ने तो बताया, बट आर्यभट्ट का इनडायरेक्ट बोला या गैलीलियो नहीं, गैलीलियो हाँ, वेरी गुड, कोपरनिकस. ओके, आजकल के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, एक्चुअली जो हमारा मॉडर्न साइंस है उसकी शुरुआत की कोपरनिकस से भी आप कह सकते हैं. कोपरनिकन रिवॉल्यूशन करके कहते हैं. कोपरनिकस का समय किसको पता है? 16th सेंचुरी, 1500 समथिंग. तो उन्होंने बोला कि सन बीच में है. वो सन बीच में है बोलने के बाद भी वो इतना डर रहा था, उसने जो बुक लिखा वो बोला कि मैं मरने के बाद ये पब्लिश करो. पता है आपको? He was so scared of the church. चर्च मुझे क्या करेगी? सो इसे मैं मरने के बाद पब्लिश करो. आप इतना डर रहा था. ये 16th सेंचुरी की बात है. अभी मैं 13th सेंचुरी आपको लेके जा रहा हूँ. ज्ञानेश्वर, सबने नाम सुना है, और ज्ञानेश्वरी, कितने लोगों ने ज्ञानेश्वरी पढ़ी है? ओके, तो प्रश्न पूछूंगा मैं, डरना मत. ओके, उसमें 4th अध्याय, जो 4th चैप्टर है, उसमें की जो ज्ञानेश्वर की जो ओवी है वो 99, वो ओवी आप जाके बाद में जरूर पढ़ना. वो क्या कहते हैं देखो, अच्छी तरह सुनो. मराठी सबको समझ में आएगी, नहीं आपको जिसको हाथ ऊपर किया मराठी नहीं आती उनको भी समझ में आएगी. आणि उदो असतो चेनी प्रमाणे, जैसे का सूर्याचे चालणे तैसे नैष्कर्म्यत्व जाणे कर्मीची असत. निष्कर्म कर्म करते हुए भी कैसा निर्माण हो सकता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो दृष्टांत का उपयोग किया वो कहा, जैसा सन, सूर्य, हमें लगता है मॉर्निंग हुआ तो ऊपर आ गया, नून हुआ तो हेड के ऊपर आ गया, अस्त जाने के लिए फिर नीचे गया. लेकिन ज्ञानेश्वर कह रहे हैं सूर्य कहाँ जा ही नहीं रहा है, लेकिन वो ऊपर आया, हेड के ऊपर गया, नीचे गया, ऐसा जैसा हमें लगता है वैसा ही नैष्कर्म्य निर्माण करना है कर्म करते हुए. तो सूर्य का जैसा बिहेवियर है ऐसा ही होता है. जैसा सूर्य कुछ नहीं कर रहा है, पृथ्वी घूम रही है, बट पृथ्वी घूम रही है, सूर्य कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हम सूर्य ऊपर आ गया, चलो उठ जाओ, तो ही मेक्स अस वर्क. तो ये जो दृष्टांत का ज्ञानेश्वर ने उपयोग किया 13th सेंचुरी में, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? Not only Jnaneshwar knew that sun is not going anywhere, but even, at least I will say, that those 13th century people of Maharashtra also knew at large. नहीं तो फिर दृष्टांत का कुछ फायदा नहीं. So कोपरनिकस को 16th सेंचुरी लगी, उसमें फाइट हो रही है
He's scared of publishing his book, and Dhaneshwar is just simply saying in a generic way. Now I'm talking of 13th century, but we'll go back to you. This is something. This is something which clicks you, like India was a mysterious land. India is a mysterious land. So it has ample mysteries in it. When we are talking about astrology and you are putting the examples of centuries, it means there are multiple mysteries that still we are unable to unfold. Can you just give some examples of such mysteries which people can relate to it, and then accordingly we can shift to the different line of it? अभी जो मैडम जी ने कहा उसका मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ आपको। नौ एस्ट्रोनॉमी और इन जनरल इंडियन सिविलाइजेशन के विषय में मैं 30 साल से ज़्यादा काम कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। मैं कब शुरू किया वो भी बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अंडरग्रेड इंजीनियरिंग, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड एज अ क्यूरियोसिटी। लेकिन अभी क्या होता है, उन्होंने क्यों कहा कि ऐसे कोई मिस्ट्रीज है क्या कि जो अभी भी पता नहीं, अभी भी सॉल्व नहीं हुए, मॉडर्न साइंस को सॉल्व नहीं हुए। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इसलिए कि ये एक सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट की जाती है अगेंस्ट इंडियन सिविलाइजेशन के नॉलेज के बारे में। आपने सुना है, मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ आगे, ऐसा कहा जाता है कि भाई ठीक है, एक कोई मॉडर्न साइंस में कोई नया आविष्कार हुआ तो फिर आप इंडियंस बकबक करने लगते हो कि ये तो महाभारत में है, ये तो रामायण में है, ये ऋग्वेद में है, ये कुछ उपनिषद में है। ऐसा क्यों नहीं करते कि वो मॉडर्न साइंस ढूंढने के पहले ही हमें बता दो कि ये ऐसा कहा है और मॉडर्न लेट द मॉडर्न साइंस चेस इट। आपने सुना है ऐसे टाइप के आर्गुमेंट्स करते हैं। तो ये एक, ऐसे तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन ये एक नष्ट, जैसा रामानुजन का जो मैथमेटिक्स है, दैट इज वन वेरी गुड एग्जांपल। अभी भी उसके ऊपर एक एक इक्वेशन पे लोग पीएचडी कर रहे हैं, उसके रैंडम नोट्स पे भी पीएचडी कर रहे हैं। आपको पता नहीं है भरतनाट्यम करने वाले कितने लोग हैं, भरतनाट्यम डांस करने वाले। रामानुजन एक बार सिर्फ भरतनाट्यम का डांस देखने गए, वो भरतनाट्यम डांस देखते देखते उन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखी। कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, और इतने इम्प्रूव्ड लैंग्वेज में लिखी कि वो क्या है, उसके लिए पीएचडीज होते हैं। बट बैक टू दिस सब्जेक्ट, कि ऐसा होता है कि आपने पहले ऐसी कोई इंडियन ग्रंथों की बात क्यों नहीं कही कि जो मॉडर्न साइंस के भी अभी समझ में नहीं आई। तो डॉक्टर अनिल नारायणन करके है, फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट, एरोनॉटिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अभी वॉशिंगटन डीसी में रहते, कंसल्टिंग वर्क करते। तो उन्होंने और मैंने एक पेपर लिखा इंडियन जर्नल ऑफ हिस्टोरिकल साइंसेस में। अभी हमारे यहाँ एक कपूर जी थे, कहाँ आए के लिए ऑडियंस में पता नहीं, शायद होंगे। तो उन्होंने पूछा कि आप पीयर जर्नल में क्यों नहीं पब्लिश करते। मैं पीयर रिव्यूड जर्नल में भी पब्लिश करता हूँ, लेकिन मैं इतना डायरेक्ट एकेडमिक्स में नहीं हूँ, एकेडमिया में हूँ लेकिन नॉट इन द डायरेक्ट सेंस। तो मेरे पे कोई कंपल्शन नहीं है, तो कंपल्शन नहीं तो इसलिए आई डोंट पब्लिश इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल्स, यू नो। मेरा एक दूसरा भी मैं कहता हूँ कि पीयर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश करने के लिए पीयर्स भी तो होने चाहिए। ओके, पीयर्स नहीं तो आप क्या करोगे, समझ में नहीं आता लोगों के क्या करते। बैक टू द आपका प्रश्न का उत्तर, तो हमने एक पेपर लिखा, अभी 2-3 साल पहले हमने पेपर पब्लिश किया। उसमें से आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। सब कितने लोगों को राहु और केतु पता है? नाम तो सबने सुना है, सब लोग डरते रहते हैं राहु केतु को। क्या है वो राहु केतु? कोई एक आंसर देगा, स्टूडेंट में भी चलेगा, कोई भी चलेगा। राहु क्या, राहु एग्जैक्टली क्या है फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है? राक्षस नहीं, ते एस्ट्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू नाही, ग्रह पण नाही, छायाग्रह म्हणजेच काय? छायाग्रह म्हणजे काय? नाही, ओके, येस प्लीज. I have been following you since long. No, answer to Rahu. So I know exactly. Huh? I know exactly because I have been. Okay, no, but you don't want to tell, right? No, because I have been following you. Thank you. So राहु ये बेसिकली जो सूर्य की जो कक्षा है, ओके, सूर्य का जो कक्षा है, उसको जब चंद्र की कक्षा क्रॉस करती है, वो जो बिंदु है उसको हम राहु और केतु कहते हैं, ठीक है। तो जो राहु है वो जो क्रॉस करने का जो पॉइंट है, उसका पूरा रोटेशन होने के लिए 18 साल लगते हैं, 18 साल, ये ध्यान में रखिए। तो 18 years इज अ वेरी फास्ट टाइम। अभी आपको मैं मिस्ट्री बताने वाला हूँ। ऐसे ही जो बाकी जो ग्रह है, जैसे चंद्र भी ग्रह है इन अ वे,
जैसे बाकी जो ग्रह है लाइक गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, उसमें से जो शनि है, शनि की कक्षा भी सूर्य की कक्षा को क्रॉस करती है, और एक बार क्रॉस किया तो दूसरी बार भी क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दूर दूर चला जाएगा काम। तो जहां क्रॉस करती है ना, तो राहु का जो पूरा 360 डिग्री से भ्रमण होने के लिए 18 साल लगते हैं, 18 इयर्स लगते हैं। जो सूर्य की जो कक्षा है, उसका जो पॉइंट है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, सूर्य का राहु कहे अभी टेम्पररी कहने के लिए, उसकी जो पॉइंट की जो पूरी प्रदक्षिणा है, उसका समय आप निकालिए, पर उसकी प्रदक्षिणा के लिए सिर्फ 360 डिग्री से 1 डिग्री मूवमेंट होने के लिए सूर्य सिद्धांत कहता है 3 लाख वर्ष लगते हैं, 300,000 इयर्स। ये सूर्य सिद्धांत का प्रेडिक्शन है। तो सूर्य सिद्धांत ने गुरु के लिए भी ऐसा प्रेडिक्शन दिया है, जुपिटर के लिए, सॉरी मार्स के लिए, मंगल के लिए प्रेडिक्शन ऐसा दिया है, बाकी सबके लिए प्रेडिक्शन दिया है। द क्वेश्चन इज व्हाट द मॉडर्न साइंस हैज टू से अबाउट इट। मॉडर्न साइंस इज म्यूट। नाउ फॉर्चुनेटली मॉडर्न साइंस हैज सेड समथिंग। जो रिलेटिव मोशंस है ना, सबसे स्लो सैटर्न है, उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, ये जो सूर्य सिद्धांत में दिया हुआ जो सीक्वेंस है, दैट मॉडर्न साइंस एग्रीज। बट जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड है, जैसा 3 लाख साल लगते हैं 1 डिग्री चेंज होने के लिए, तो आपको पूरा रोटेशन का फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 360। वेरी गुड, उनके लिए तालियां बजाएं। जिनको उत्तर नहीं आया वो जरूर बजाएं। कितने समय की ना प्रश्न ये था, ये सिर्फ नंबर बोला इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंडियन साइंटिस्ट ने कैसा फिगर आउट किया, इंडियन ऋषियों ने कैसा फिगर आउट किया, दैट इज द मैजिकल पार्ट। और आपको मैं जब कब फिगर आउट किया बताऊंगा तो और आप चौंका जाएंगे। बैक टू Now, listening what Rahu and Ketu, we can at least differentiate astrology from astronomy. Right? Nowadays, people have this Rahu Ketu with the Instagram reels and everything. So they have this with the ये दिया लगाओ, ये राहु ये जाएगा. But now you have a scientific reason behind it, right? So can you just tell me about the antiquity of all these areas? all these Indian Yes. astronomy, Yes. antiquity of Indian astronomy, antiquity of Indian astronomy, ये हमें कैसा पता चलता है वो मैं बताता हूँ। आर्यभट्ट का जो आर्यभट्टिया ग्रंथ है उसमें आज जाएंगे नहीं हम, ओके, बिकॉज फिर वो एक डिफरेंट गियर चेंज करना पड़ता है, आपको बैकग्राउंड पता चाहिए। सी दिस इज व्हाट हैपेंस। अभी पूरा ऑडियंस बन गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब पहले बहुत कम लोग थे, मैं कहने वाला था कि कम लोग है करके नेगेटिव नहीं है नेसेसरली। एक्चुअली मेरा अनुभव ये है कि जितने लोग कम उतना क्वालिटी ऑफ डिस्कशन गोज अप, ओके, बट ये नंबर गेम की नहीं है। सी आपको ये आहा होने के लिए आपको भी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत है, अदरवाइज आपको आहा नहीं होगा, जो कुछ एक नया इंफॉर्मेशन ही मिल गया ऐसा हो जाएगा। तो उनका प्रश्न है कि एंटिक्विटी कितनी है, वो पहले हमें कैसी पता चलती है मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कि समझ लो एक हम नागपुर में कहाँ घूमे, एक पुराना एक बिल्डिंग हमें मिला, तो हमें कैसा पता चलता है कि ये कितना पुराना है, तो हम कुछ कार्बन डेटिंग वगैरह करेंगे, राइट। फिर उसमें भी सब एक समय में, अभी जो हमें बिल्डिंग दिख रहा है वो एक समय में ही बांधा है, नॉट नेसेसरली। हमारे घर की बात करते हैं, समझ लो आपने एक बंगला बांध दिया, पहले 20 साल कुछ करना ही नहीं पड़ा ऐसा समझ लो। उसके बाद क्या होता है, वेरी लाइकली पहली चीज आप उसमें बदल करोगे वो कौन सी जगह होगी। घर में आपको कभी क्या बोलते हैं रिनोवेशन करने के समय आ गया, तो क्या हो गया, कौन सी जगह होता है रिनोवेशन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक्सटीरियर पेंट करना पड़ेगा, और ठीक है पेंट मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा। लोग जनरली लेडीज की चलती है ना घर में, तो बोलते हैं किचन को रिनोवेट, अमेरिका में तो ऐसा होता है किचन को रिनोवेट कर देते हैं ऐसा करके, देन कुछ और एक रूम एक्स्ट्रा ऐड किया। तो हमें क्या होता है, घर तो पुराना है 20 साल का, बट किचन हुआ उसके जो बिल्स देखेंगे तो 2 साल पहले हुआ ऐसा आपको पता चलेगा, राइट। देन और कुछ किया, सीलिंग फैंस चेंज किया, लाइटिंग चेंज किया, इफ यू कैन फाइंड दैट एविडेंस, तो आपको पता चलता है ये घर तो 20 साल पुराना है, बट ये चीज को 2 साल पहले चेंज किया, ये चीज को 5 साल पहले चेंज किया। समझ में आ गई। ऐसी ही चीज हमारे सूर्य सिद्धांत की है। सूर्य सिद्धांत इज द बेस्ट एंशिएंट, आपकी बात करें तो बेस्ट एस्ट्रोनॉमी टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। अभी आप इंथुस्ड होकर इमीडिएटली सूर्य सिद्धांत पढ़ने का प्रयत्न मत करो, कर सकते हैं, बट आप बोलोगे क्या बोला नीलेश जी ने, क्या पढ़ने को बोला हमें। एक्चुअली इट इज, सूर्य सिद्धांत ऐसा टेक्स्ट नहीं है कि कोई भी ओपन करके पढ़ने लगे। जो एकदम एक्सपर्ट लोगों के लिए, जैसा फिजिक्स में आप कहे कि सबको पता है फिजिक्स, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म एग्जाम के पहले आप लिखते हैं ना फॉर्मूला,
ऐसा फॉर्मूलाज है एकदम कोडेड, जैसे A इक्वल टू MC स्क्वायर, F इक्वल टू MA, नर्स्ट इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, जो फॉर्मूला देख के लोगों को पता चल जाए, ऐसी टाइप का वेरी कॉम्प्लेक्स भाषा में सूर्य सिद्धांत है, वेरी एब्स्ट्रैक्ट भाषा में है। लेकिन उसमें जिसको समझ में आ जाता है उसको समझ में आ सकता है कि ये पर्टिकुलर रिनोवेशन कब हुआ। अभी रिनोवेशन की जरूरत क्यों होती है आपको सबको समझ में आ गया। एस्ट्रोनॉमी इज एक्सट्रीमली स्टेबल है, जो ऊपर आकाश में दिखता है वो बहुत स्टेबल है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता। बट ज्यादा फर्क नहीं होता मीन्स क्या, हमारे लाइफ टाइम में कुछ फर्क नहीं होता। 1000 साल हो गए, 1 सहस्त्र साल गए तो भी कुछ फर्क नहीं होगा। बट as you go 2000, 3000, 4000, 5000 years तो कोई फर्क होने लगते हैं और वो फिर एडजस्ट करना पड़ता है, फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है, रिनोवेशन करना पड़ता है। वो रिनोवेशन के कंसेप्ट से हम अभी पीछे चले जाए तो मैं आपको 1 मिनट में आपको मैं अप्रोक्सीमेटली 40 to 60,000 years की इंडियन एस्ट्रोनॉमी की एंटिक्विटी बताने वाला हूँ। 60,000 years तक, 60,000 6,000 वगैरह नहीं, okay? 6,000 इंडियन एस्ट्रोनॉमी, इंडियन सिविलाइजेशन में 6,000 years मींस यस्टरडे, समझ गए। आज से हमने प्रारंभ किया सूर्य सिद्धांत में, हम पीछे चले गए कि देखें कि अरे लेटेस्ट कौन सी चेंज हो गई। तो आपको जाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 1500 years ago, 580 CE अप्रोक्सीमेटली, कि वहां जो लॉन्जिट्यूड्स है, कितने लोगों को लॉन्जिट्यूड समझते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स जगह के भी होते हैं। तो सिमिलरली इमेजिन करो कि हमारा क्रिकेट बॉल है बीच में, ये पृथ्वी हो गई और उसके बाहर बड़ा फुटबॉल हमने रख दिया, तो वो हो गया हमारा आकाश का ग्लोब सर्कुलर। तो हमारे यहाँ के भी लॉन्जिट्यूड्स लैटिट्यूड्स है, वैसे तारों के भी लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। समझ में आ गया, वही एक्सपेंड कर दिया आपने। तो मैं तारों के लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, समझ में आ गया। तो उसके जो लॉन्जिट्यूड्स है, हमें सूर्य सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि जो सूर्य सिद्धांत में दिए हुए जो लॉन्जिट्यूड्स है, वो जो अभी नंबर्स है वो 580 C यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1500 years पहले मेजर करके रखे गए। ये सुन के वेस्टर्न लोगों ने जब सूर्य सिद्धांत पहले उनको पता चला 18th century में, दे वर वेरी एक्साइटेड। बट उन्होंने ये जो देखा तो बोला अच्छा ये तो टेक्स्ट 1500 years पहले लिखा हुआ है। दे स्टॉप देयर। अपने बर्जेस की कमेंट्री पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि इट वाज ए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। आपको पता है सूर्य सिद्धांत का, हमें तो सूर्य सिद्धांत नाम भी पता नहीं। कितने लोगों ने सूर्य सिद्धांत पहले सुना था इधर आने के पहले? आज कितने लोगों ने नहीं सुना था? हाथ ऊपर कीजिए। वेरी गुड। जब यूरोपियंस यहाँ पहले आ गए, they jumped on सूर्य सिद्धांत, they jumped on lots of things। उसका भाषांतर करना was a trans-Atlantic project। उनको उसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। There are professors from Yale, professors from Harvard, and there are professors from Oxford, Cambridge, और ये दोनों को कुछ अकल नहीं है करके फ्रांस के लोग, Burgess is French guy, because out of the Western Europe, the French are the closest and the best who understood Indian astronomy, कैसिनी वगैरह लोगों ने। तो बट फास्ट फॉरवर्डिंग, तो उन्होंने लगा कि 1500 year old ये टेक्स्ट है, और इसलिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स को, सूर्य सिद्धांत के एस्ट्रोनॉमर्स को वो गाली देने लगे। When they looked at other formulas, और वो फार्मूला मैच नहीं हो रहे, बोले ये क्या हो रहा है। उनको ये पता नहीं कि वो फार्मूला 1500 years पहले का नहीं है। सो आई एम गोइंग टू टेक यू बैक। उसके पहले हमें जाना है, तो सर्टेन टेक्निकल में भाषा दूर करता हूँ, तो हमें इपॉक हम कह सकते हैं, वो आता है 3000 BC। उसके कारण हमारे सब जो पंचांग है उसका बेसिस है 3000 BC, और हम मानते हैं 5000 साल पहले। हम सब बोलते हैं ना, किसी ने पूछा भारतीय संस्कृति कितनी पुरानी है, हम एक एकदम ऐसा इग्नोरेंट आंसर दे देते हैं 5000 साल पहले। वो एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है बाय द वे। वहां से हमारी पंचांग, अभी का जो पंचांग है उसका प्रारंभ हुआ, उसका कोई एस्ट्रोनॉमी रीजन है उसमें मैं जाता नहीं, लेकिन वो सूर्य सिद्धांत में आपको मिलेगा। उसके पहले आपको जाना है तो 5500 महाभारत BC, 7500 साल पहले महाभारत के समय इक्वेशन ऑफ सन करके कहते हैं। इक्वेशन ऑफ सन मींस क्या? अभी सब सुबह सूर्योदय होने के पहले आकाश में सूर्योदय कहाँ होगा और आज दिन में उसका आकाश में पाथ कौन सा होगा, वो हर एक दिन के लिए प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सन। और सिर्फ नेक्स्ट ईयर के लिए नहीं, नेक्स्ट 1000 years के लिए भी। That equation of the sun, which is there in Surya Siddhanta, is most accurate and precise in 5500 BCE, time of Mahabharat war के ऑफ। तो तब हुआ, तब कुछ करेक्शन किया उन्होंने, कैलिब्रेट किया। अभी मैंने लॉन्जिट्यूड्स की बात की, वैसे लैटिट्यूड सबको समझ में आती है। जो हमारे कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र। ओके, उनके लिए तालियां बजाएं। जिनको पता नहीं वो नंबर जरूर बजाइए। 27 नक्षत्र।
ये जो नक्षत्र के जो योग तारा यानी कि स्टार्स रहते हैं उनकी जो लैटिट्यूड्स है, ये अनिल नारायण जी मेरे जो फ्रेंड है उनका काम है, वो पब्लिश इन पीयर रिव्यूड पेपर्स, जिनको पीयर रिव्यूड पेपर्स ही चाहिए उनके लिए। तो दैट डेट इज 10,000 years ago from today, 8000 BC में जो लैटिट्यूड्स ऑफ द नक्षत्र है जो हमारे सूर्य सिद्धांत में, हम वो एकदम साइंटिफिकली सिद्ध कर सकते हैं मीन्स किया ही है कि वो 8000 BC यानी कि 10,000 years पहले मेजर किए गए, एंड दैट्स हाउ दे आर देयर। ऑक्सफोर्ड में हमने 5 साल पहले मैं और रूपा भाटी करके उन्होंने पेपर पब्लिश किया, उसमें हमने दिखाया कि सिर्फ 3 श्लोक हम ले सकते हैं सूर्य सिद्धांत के, 3 श्लोक, they take us to 12,000 BC यानी कि 14,000 years ago। So I'm not go fast, 12,000 BC, उसके पहले आप गए तो 14,500 BC, सबको BC समझ में आता है? इतना समय पहले करना है तो 2000 साल ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद if you want to go back 22,000 BC, 24,000 BC, 28,000 BC, 34,500 BC, 38,000 BC, 58,000 BC। ऑडियंस में किसी का नाम स्वाति है? No? You can pretend। तो स्वाति नक्षत्र का जो हमारे पास जो रेफरेंस है, it tells us that हमारे ऋषि एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, डेटिंग परफेक्ट मेजरमेंट कर रहे थे एटलीस्ट 58,000 BC यानी कि 60,000 years ago। तो कम से कम हमारी इंडियन एस्ट्रोनॉमी इतनी पुरानी है। सॉरी आई टुक लॉन्गर। No, it's all fine. म्हणजे थोडंसं मराठी मध्ये जाते मी। आपण जुनं डिस्कस करतोय, त्याच्यानंतर इट कम्स इंडियन एस्ट्रोनॉमी, सगळं झालं, वेद पुराण, मग युग निघाले, आणि त्याच्यानंतर आताच्या याच्यामध्ये जर आपण मागे गेलो सो देअर इज लाईक, तुम्ही ज्ञानेश्वरांचा टॉपिक काढला पण 1212च्या त्याच्यामधनं जर आपण घेतलं तर जे राजा रामदेवराव यांच्या काळामध्ये अल्लाउद्दीन खिलजीचा जो पहिला हल्ला झाला त्याच्यापासून बाहेरचे जे एंटिटीज आहे ती आतमध्ये आली, ठीक आहे। नाउ हाउ, आय एम सो सॉरी, this was the part which I could not translate in English, so that's why I asked in Marathi. So what exactly this astronomy plays role in the prosperity of our country? Very good. Even after such sort of entities entering, looting, taking away the things, but then also astronomy is there. So in fact, when Indian astronomy went to the Western Europe, Western prosperity began. Okay, but now we must understand कि हम नीचे क्यों गए, वो भी एक है। और what is the astronomy does? Astronomy वैशेषिक सूत्र कितने लोगों ने नाम सुना है? ये वैशेषिक सूत्र नहीं? ओके, छोड़ो। पर उसमें जो धर्म का डेफिनेशन है, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिस कारण से प्रॉस्पेरिटी हो जाती है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, लेकिन मन के बुद्धि के लिए अल्टीमेट गुड भी समझना जरूरी है। पैसा कमाओ पर ये भी समझना चाहिए कि कब स्टॉप करना है और एंजॉय करना है उसको, ये तो कमाते कमाते मर जाओगे। वी शुड नो व्हेन टू स्टॉप एंड एंजॉय इट आल्सो। तो वो जो बताता है बेसिकली दैट इज अ धर्म, ऐसा कहते हैं। नाउ प्रॉस्पेरिटी किससे आ जाती है? सब पुराने जमाने का विचार करो ना, प्रॉस्पेरिटी किससे आएगी? एग्रीकल्चर से आएगी, एक सब ग्रो करने से, जैसे कि काउ रेयरिंग होगा और एग्रीकल्चर होगा। और किससे प्रॉस्पेरिटी आएगी? कॉमर्स, बिजनेस हम कहते हैं ना, बिजनेस में प्रॉस्परस लोग दिखते हैं। तो एग्रीकल्चर और कॉमर्स ये आपको सक्सेसफुल करना है, प्रॉस्परस वे से करना है, सस्टेनेबल वे से करना है, तो दोनों के लिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी है वो है एस्ट्रोनॉमी। एग्जैक्टली अभी कितने लोग फार्मर्स है यहाँ, कितने लोगों ने एक्चुअली फार्मिंग किया है? ओके, वेरी गुड। नाउ आजकल तो हम कैलेंडर में देख के बता सकते हैं, पर जब कैलेंडर्स एग्जैक्टली नहीं थी तो अभी भी गांव में आप जाके देखो, लोग ना नक्षत्र में बात करते हैं, उनको ये पता नहीं है ना, कीर्तिका पडल्या, मराठी मध्ये कीर्तिका पडल्या, डू यू नो व्हाट दैट मीन्स? द कृतिका नक्षत्र began means what? Began means what? Sun entered कृतिका नक्षत्र, you know, something like this. So to know this exactly, we need exactly when to sow the seeds, when to harvest it, and so on, when to predict the rain. Because of that, they needed astronomy for a season. Why do you think for commerce, like business के लिए astronomy क्यों चाहिए बताइए? आजकल तो नहीं लगती। Travel, very good. Travel not only on the ocean but also on the ground. हमारे ग्रंथों में कभी-कभी जो एक जगह का कितना विस्तार है
जैसे कि कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवत्त, उसका कहते हुए ऐसा कहा है कि वो 2 डिग्री का विस्तार है। और वो जब लोग पढ़ते हैं तो उनको समझते हैं 2 डिग्री कौन सी, दे आर टॉकिंग 2 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड्स, 110 टाइम्स 2, इतना आप चले जाओ। तो लैंड पे तो थोड़ा सा तो रीजनेबल है, बट ऑन द ओशन कितने लोग ये लिया है, क्या आप कहते हैं उसको, क्रूज शिप, कि जहाँ आपको कोई ओशन का मीन्स ये रेफरेंस दिखता ही नहीं, सडनली इन द मिडल ऑफ द ओशन आपको जाना, जैसे एरोप्लेन्स भी आप आजकल यूज करते हैं, यू नो अभी जो जीपीएस सिस्टम हम यूज करते हैं, एंशिएंट जीपीएस सिस्टम इज एस्ट्रोनॉमी। तो बिकॉज ऑफ दैट दिस हैपेंड, ये ओरिजिनल पर्पस था उसके बाद, बट उसके आगे क्या हुआ, नाउ यू सी दैट इन आयुर्वेदा, you will see that in architecture, meaning design, घर का डिजाइन कैसा हो, सन कहाँ से आए, आप कहाँ हो, you know, depending on your place, you know, the location of your house, the orientation should be there. अभी मैं नॉर्थ की नहीं बात करता, but I lived in the extreme north places like Canada for example. तो मेरा जो अपार्टमेंट था, अपार्टमेंट लेते हुए भी सोचना पड़ता है, 12th फ्लोर पे था, it was facing south, उसकी जरूरत है, especially in winter, I can only look in the south direction. आपको क्या सिखाया जाता है? Sun rises in what direction? East, not in Canada. If Canada में south करके आप देख रहे हैं ना, मेरा अपार्टमेंट 12th स्टोरी पे इमेजिन करो, साउथ में देख रहा है, without moving my head, I could see the sunrise and a sunset for easily 3-4 months. So this also astronomy comes into how you build your house, architecture, all of this, and that's how it is connected to prosperity. और एक बात बता दूं कि न्यूटन ने क्या बड़ा चीज क्या किया, न्यूटन ने, केपलर ने तो फॉर्मूला तो दिए थे या, बट उसमें क्या किया, एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात किया, उसके कारण जो मॉडर्न साइंस है ना, उसने एकदम जंप स्टार्ट शुरू किया न्यूटन के कारण। ग्रेविटी ठीक है, लेकिन एक बात की जो केपलर ने भी पहले बात बताई थी, केपलर ने भी ग्रेविटी की बात बताई थी, लेकिन समथिंग दैट केपलर ने नहीं किया वो न्यूटन ने किया। एनीवन? नहीं सर, वो तो मींस रिलेटिविटी उसने नहीं किया, वो आइंस्टाइन ने किया। मैं आपको उत्तर देता हूँ, फॉर्मुलेशन F = ma, बाद में आइंस्टाइन ने इक्वल टू mc²। अभी तो आपको सब पता है, उसमें क्या बिग डील है। क्या मैं आपको ये बता दूं, अंटिल न्यूटन वेस्टर्न यूरोप डिड नॉट हैव अ आइडिया दैट कोई प्रेडिक्शन करने के लिए आप फॉर्मूला में लिख सकते हो। वो दे यूज्ड टू यूज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लिटरली ज्योमेट्रिक डायग्राम करके वो दिखाते थे। इट इज न्यूटन इज द फर्स्ट वन इन द वेस्टर्न यूरोप हु सेड कि उनका जो बिहेवियर है एस्ट्रोनॉमी का, वो फॉर्मूला में लिख सकते हैं। नो, व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज़ सूर्य सिद्धांत हैज डन दैट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो। कितने लोगों ने सूर्य सिद्धांत पढ़ा है यहाँ? कोई पढ़ा है? somebody? No? Okay, so I can bluff. सूर्य सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है वो है मध्यमाधिकार, मीनिंग फाइंडिंग द एवरेज पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। सूर्य सिद्धांत का जो सेकंड चैप्टर है वो है स्पष्टाधिकार, फाइंडिंग द प्रिसाइज पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट। कितने लोगों ने वर्नियर कैलिपर का उपयोग किया है? What is that? There is a main scale, there is a secondary scale. Even this whole concept has come from Surya Siddhanta measurement. Back to you. I guess if we keep discussing, You can stop it. yeah, time is something जिसका पता नहीं चलेगा. But just to conclude with, I would request you to first to recommend a book through which we can start understanding the basics of this concept. And the second most important thing, I would like to make everybody imagine that what if this concept was not at all there? How the thing will be, how the world will be. Okay, so what if this concept was not there? Well, it would be the world, you can say, in Europe, it is described as the dark period, 1500 dark period, from about 0 to about 1500 until Copernicus came on the scene. Extremely, I mean, if you watch some old movies, Europeans have done a good job of showing how the life was. Okay, even frankly, 200 years ago in London, you know, we sitting here, we think London must be something very fascinating. In fact, we should be all feel fortunate. अभी हमारे लिए उन्होंने क्या किया है? सिर्फ एस्ट्रोनॉमी नहीं, जो मॉडर्न साइंस है ना, how many of you know the whole development of modern science, the whole motivation of a modern science of last 500-600 years is nothing but astronomy. How many of you knew that? उसके कारण अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई, बाकी सब आ गए, बट अभी आपको जो फेमस नाम पता है समझ लो, कोपरनिकस, राइट? और कौन से नाम बताइए? कोपरनिकस, गैलीलियो आपने कहा,
केपलर कहा, न्यूटन, ओके, मैक्सवेल, फैराडे, आइंस्टाइन, फ्रेस्नेल, ये सब कौन है? ये सब एस्ट्रोनॉमर्स है गाइस। ओके, तो डेवलपमेंट ही एस्ट्रोनॉमी के कारण हुआ, लेकिन कैसा हमारा बिहेवियर होता था या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो इफ यू लुक एट द 1500 years फ्रॉम जीरो इन वेस्टर्न यूरोप, फ्रॉम 0 to 1500, you will see, you will get a very good idea कैसा लाइफ था। बट वी आर सेइंग वी आर वेरी फॉर्चुनेट, मॉडर्न साइंस का भी जो एक बड़ा रोल है लास्ट 200, 300, 400 years में, अभी हमारा कोई भी एवरेज पर्सन ये रूम में बैठा हुआ, एवरीवन हियर, नाउ दिस में बी सरप्राइजिंग टू यू, बट एवरीवन हियर, आई डोंट नो आपका क्या क्या, हर एक का अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशो इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ एवरी पर्सन इन द रूम, उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो कम से कम 20 times better than someone like Napoleon or the Queen Victoria or anyone. That is the fascination of the modern science that we are seeing it. And उसकी जननी एस्ट्रोनॉमी है, और वो एस्ट्रोनॉमी की जननी इंडियन एस्ट्रोनॉमी है। Thank you so much. So finally, when kids, especially to you, when somebody says what's there in India, so you say that India is there to give everything, so everything is here in India, isn't it? Isn't it? Okay. Many thank you, sir. This was something which is wonderful and fascinating, and I am sure living the thing in between leads to something different after that again. So I am just leaving it in between to be continued के साथ. Yes, and I'll give a food for thought. Okay, you don't have to answer that, but just think about it. कोलंबस पश्चिम दिशा में निकला यूरोप से, और वास्को डी गामा पूर्व दिशा में निकला। उत्तर मत देना, ये सोचना कि वो क्या ढूंढने निकले थे। You will get the answer. Thank you. Thank you so much. We'll take some questions from the audience. Okay. The question, आप ये ले सकते हैं, and keep the question very crisp and brief. Okay. And especially if you ask the question in such a way I can answer yes or no, that's the best. Please go ahead. How can astronomy affect business for success, and can you give some solutions for better success in business by astronomy like Vastu or Feng Shui? So प्रश्न है कि how can you use astronomy for a business? तो मैंने तो पहले कहा घर के लिए होता है, पहले तो GPS सिस्टम भी थी, लेकिन अभी आपको यूज करने की जरूरत नहीं। जस्ट मैं बता दूं कि द इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, ओके, हमें भी शौक हुआ, इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट कॉन्टैक्टेड मी एंड रूपा भाटी जी, आपने जिन्हें नाम सुना होगा, टू कम एंड टीच द जगह वगैरह कुछ बता नहीं सकता, टू टीच देम इंडियन एस्ट्रोनॉमी। डू यू नो व्हाई? आई मीन आई एम टेलिंग यू द डिफेंस, तो सबसे इंपॉर्टेंट है देश के लिए, बिकॉज इफ आजकल कुछ भी कर सकते हैं, तो एक दूसरे युद्ध हो रहा है तो पहले क्या करते हैं, आपके सैटेलाइट्स भी डिसेबल कर देंगे, तो हम भूल जाते हैं अभी जीपीएस सिस्टम कैसा यूज करने का, वो हो गया। आपका जो प्रश्न है उसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, माय वाइफ, ये मार्केटिंग नहीं है मेरे वाइफ के लिए, अश्विनी, नो शी इज एस्ट्रोलॉजर, वो एक अलग विषय है, तो बट शी इज नॉट अ वास्तु एक्सपर्ट, बट वास्तु एक्सपर्ट का उपयोग किया जाता है। व्हाट इट इज नॉट एग्जैक्टली साइंस इन द वे वी कॉल फिजिक्स इन साइंस, बट कितने इंजीनियर्स है ऑडियंस में, हाँ, तो इंजीनियर्स को कोरिलेशंस पता है, हम नॉन डिमेंशनल नंबर यूज करते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, स्टैंटन नंबर, श्मिट्स नंबर, तो जो इग्नोरेंस है वो हम कांस्टेंट में डाल देते हैं, और बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारा इंपेरिकल डेटा कलेक्ट करके, उससे जो हुआ है उससे बहुत, आई मीन आई विल टेल यू जस्ट लिमिटेड एक्सपीरियंस ऑफ माय वाइफ इन एस्ट्रोलॉजी, नॉट अ वास्तु एग्जैक्टली, बट व्हाट शी डज, शी हैज अ 90% प्लस एक्यूरेसी। नो क्यों है वो भी नहीं बता सकती, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, but it's a lot of data collected over a time, pattern recognition you can say, and that can be useful. Thank you. Yes. So I wanted to ask that there are so many monuments around the world that talk about astronomy, like Göbekli Tepe, etc., that are coming up. What is the connection between the various ways in which astronomy has developed across the world in that sense? What is the connection? What is the connection? Okay, so What did they happens develop is- separately? Huh? What did they develop separately?
No. It has a astronomy connection. It is like stamping the time, like a time stamp. मैं क्विकली बता दूं, आप पंचांग से आपको एक लाइफ टाइम के लिए समझ में जाता है. इंडियन एस्ट्रोनॉमी में टू द पंचांग, जो मैं बोला सन, मून और नक्षत्र, उसको आप ग्रह के पोजीशन ऐड कर दो, प्लैनेटरी पोजीशंस, यू गेट इतिहास. दैट इज व्हाट यू गेट द एविडेंस इन महाभारत एंड रामायण. आपको भी पता नहीं है तो यू कैन टेक माय बुक्स और इवन द माय यूट्यूब टॉक्स. Okay, at the bedtime you can start watching them. They are very useful. Okay, so if you add the planetary descriptions, you get the इतिहास. और मैं लास्ट जो स्वाति नक्षत्र की बात की थी, and if you start realizing that nakshatra literally means that does not move, naksharati iti nakshatra. When the nakshatra starts moving, you start getting a glimpse of the deep antiquity of Indian civilization. तो आपके प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि the same idea, but they were time stamping in a physical way. In an Indian way, Vyasa and Valmiki, they time stamped into the shloka, into Itihasa text. Hoover Dam कितने लोगों ने सुना है? कैलिफोर्निया में जो Hoover Dam है, actually they have created a map like that on the ground just outside Las Vegas. If you ever get a chance, do visit that place. Thank you. Sir, is astrology and astronomy related? Because I want to become an aeronautical engineer and I want to know if astronomy will be an important thing for me to become an aeronautical engineer. बहुत ही अच्छा प्रश्न है. तो आप एस्ट्रोलॉजर को जाके पूछ सकते हैं क्या आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं. ओके, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की आपको जरूरत नहीं रहेगी. मैं ह्यूमरसली कह रहा हूँ. बट एस्ट्रोनॉमी आपको डायरेक्टली एरोनॉटिकल की जरूरत है ऐसा आजकल जरूरी नहीं है, बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स के कारण बहुत कुछ हुआ है. लेकिन एस्ट्रोनॉमी आप पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि तेज हो जाती है. वराहमिहिर ने, जिनका इन्होंने नाम लिया, वराहमिहिर तो कहते हैं, ये आप ध्यान लो, जिनको मोक्ष वगैरह पाना है ना, मुक्ति पानी है, उनके लिए वराहमिहिर क्या कह रहे हैं वो सुनो. वराहमिहिर तो कहते हैं until you understand astronomy there is no mukti. He is so fascinated, that's why he is saying it. Take it on a humorous note, डरना मत. But until you know astronomy, there is no moksha. That's what he said. So And उसके लिए पढ़ना जरूरी है. Yes, the last question. Yes, please ask. The question only. Only question. I would like to know the reaction of the Western country to the timeline which you are giving. Very good question. Thank you. So some of you may be aware of my work. Not. I will not go into that. Do become familiar. What is the reaction of the Western audience to the timeline of Indian astronomy, but even the other Indian itihasa that I have given? Basically, they are extremely fascinated, extremely happy, extremely amazed. It is mostly the lazy, dogmatic Indians who are not willing to do tapasya and come out of their laziness. That is the reaction. Western guys are amazed and fascinated. Thank you. I think that was the last question. Yes. We must stop here because the next Yes, session is about to begin and Yes, the guests have already come. come. Yes. So thank you, and audience, I'm sure that you would have been taken back a great spark of thoughts and ideas that was shared by our guests on the topic of this session. So please give them a big hand, and thank you so much for being with us. Please promise with us. Thank you, and as a token of love, we have got this. I see my photo here. So we request all to please read the books written by Sir, and you can visit all the YouTube channels and Insta posts to understand the details that have been interviewed by many experts, and Sir is there on all the discussions. So you can just go through that, and would request Sir to please, if it is fine, so you can just please give a name of a book which these kids can just pick it up. Okay. It may surprise you, but it is a very factual answer. Bhagavad Gita. Okay, start with the Bhagavad Gita and you say what that has to do with astronomy. Find out for yourself. I'll give you a clue. Chapter number 10. Thank you. Thank you, sir. Thank you. That was great.